Hello dear students, good morning to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Rainfed Agriculture and Watershed Management, and course number is AGRO-5321. So our today's topic is again the contingent crop planning for aberrant weather conditions. Okay. So yes, in our previous lecture we had seen some what is the contingent planning and how aberrant weathers are affect in our crop growth and development. Okay, so today we will discuss about such abnormalities like as I earlier told you, sometime the monsoons may come little early and the another year it may come little later. Okay, and that such situation, what should be what kind of crop should be preferred for that particular abnormalities. Okay, so let us see the different abnormalities and their precautions measure. Okay, so this is the contingency crop plan for different abnormalities. Like we have a two column, and that such column we have the some rainfall abnormality, and then contingency plan and mid term correction means हमको कैसे precaution करना है या कैसे plan हमें बनाना है, right? So if the monsoon delayed onset of rainfall, सो अगर मानसून जो है वो डिले हो जाता है देन व्हाट शुड वी डू फॉर आवर क्रॉप प्लानिंग. ओके, सो डिले एक्सीडिंग 4 वीक्स, अगर 4 सप्ताह से पहले या 4 वीक से ज़्यादा डिले हो जाता है देन वी शुड ऑल्टरनेट क्रॉप फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन टू बी शोन. लाइक एज अर्लियर आई टोल्ड यू इन आवर प्रीवियस लेक्चर, if more than the monsoon is late more than 4 weeks, so in that such situation paddy crop is not possible. In that such a situation you will help to replace your crop, and you will help to take those crop in the field which will mature little early. Okay, या हम कह सकते हैं we would say which will require less amount of moisture, less amount of water, because ultimately this 4 weeks delayed of the monsoon will also the result into the less amount of precipitation, we would say, right? So in that event you will have to grow in crop which will take less amount of time, less amount of water, less requirement of moisture amount. Okay, so the first one is that alternate crop should be preferred for that, if the monsoon should be delayed in more than 4 weeks. Okay, so delay in southwest monsoon, which is a normal is like जून, मिड जून, 1 जून से मिड जून तक जो मानसून आ जाता है इन साउथ वेस्ट मानसून, बिकॉज मानसून in India, monsoon is come from the south west monsoon. So always आपको याद रखना है कि कौन सा मानसून है और कब आता है. ठीक है, बेसिकली तो साउथ वेस्ट मानसून है जो केरल से स्टार्ट होता है, जो मिड जून या 1 जून से स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ द नॉर्मल कंडीशन. ओके, इफ़ डिले दैन द मानसून इज शिफ्ट to the July month. If more than 4 weeks delay, we should prefer the August if monsoon comes from the August such situation. In that particular situation, groundnut, ragi, pearl millet, sava and cowpea, these crops should be preferred. ठीक है, ये क्रॉप हमें प्रेफरेंस में लेना चाहिए, क्योंकि राइस क्रॉप हम नहीं ले सकते, क्योंकि राइस क्रॉप को एक एडिक्वेट अमाउंट में मॉइस्चर की आवश्यकता होती है, राइट. एंड द सेकंड इज़ डिले इन नॉर्थ ईस्ट मानसून. ठीक है, अगर नॉर्थ ईस्ट मानसून डिले होता है तो जनरली वो नॉर्मल अक्टूबर में होता है, और अगर डिले हो रहा है तो अर्ली नवंबर, और अगर बहुत ज़्यादा डिले होता है, मोर देन 4 वीक डिले होता है, तो इट कैन बी शिफ्ट इन लेट नवंबर. हम कह सकते हैं कि लास्ट वीक ऑफ नवंबर. ओके, एंड दैट सच सिचुएशन वी हैव टू डू लाइक कॉटन एंड शोरगम की इंटरक्रॉपिंग हमें करनी चाहिए, एंड सनफ्लावर, पर्ल मिलेट, रागी, कोरिएंडर, बेंगल ग्राम. तो ये सारे जो क्रॉप्स हैं वो इस मेजरमेंट में हमें अप्लाई करने चाहिए हमारे फील्ड पे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रेसिपिटेशन, अकॉर्डिंग टू द रेनफॉल इंटेंसिटी ऑल्सो. ओके, सो डिले ऑफ 1 to 2 weeks, अगर 1 to 2 weeks डिले होता है तो देयर
दैट इज़ अ वेरी माइनर डिफरेंसेस हम कह सकते हैं, बहुत ही कम अंतर होता है मानसून में, क्योंकि अगर 1 से 2 वीक ही आपका मानसून डिले है जनरली, तो हम जो अपने क्रॉप है, मेजर जो क्रॉप है, हम उसकी नर्सरी लेइंग कर सकते हैं और प्रॉपर टाइम पे हम उसको थोड़ा डिले करके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है। बट थोड़ा डिले करके ट्रांसप्लांट करने में एक प्रॉब्लम आती है कि जो भी हमारे क्रॉप प्लांट होते हैं उसकी टिलरिंग कम होती है। हम कह सकते हैं टिलरिंग जो होती है वो बहुत ही, टिलरिंग इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो उस सिचुएशन पे हमें सच सिचुएशन पे हमें पर हील जो है वो टिलरिंग जो प्लांट है, क्रॉप प्लांट है, वो हमें बढ़ा देना होता है, ठीक है। So, if the monsoon delay of 1 to 2 weeks, then alternate varieties of short duration of same crop, right? Like अगर हमने राइस क्रॉप लेना है तो हमें राइस क्रॉप में ही शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी जो है वो प्रेफर करना होगा, ओके। सच एग्जांपल्स आर लाइक सोरगम CO19 which is 150 days, and so जैसे कि CO25 which is also the variety of sorghum which is 110 days। रेड ग्राम लोकल लेना चाहिए, जो कि इनका जो ड्यूरेशन है हम कह सकते हैं आफ्टर सोइंग, जो भी टाइम ड्यूरेशन है टू द सोइंग टू फ्रॉम द सोइंग टू मैच्योरिटी फेजेस, तो वो क्रॉप ड्यूरेशन जो है वो कम ड्यूरेशन का लेना चाहिए, लाइक। एंड द सेकेंड इज़ द अर्ली विदड्रॉ ऑफ रेनफॉल। अगर मानसून जल्दी आ जाता है तब हमें क्या करना चाहिए, देन एंटी ट्रांसपेरेंट स्प्रे, हार्वेस्टिंग for fodder, millets, harvesting the physiological maturity. So the question has been arise from that anti-transparent. Okay, so what is the anti-transparent? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंटी ट्रांसपेरेंट होता क्या है, राइट। सो इन हम कह सकते हैं जनरली कि ऐसा मटेरियल जो ट्रांसपेरेंट प्लांट सरफेस में हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो हमारा मेन एम है इस एंटी ट्रांसपेरेंट अप्लाई करने का, वो क्या करता है, वाटर लॉस को कम करता है, ठीक है। इनहिबिट द वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट सरफेस इज कॉल्ड द एंटी ट्रांसपेरेंट बेसिकली, ओके। सो हम कह सकते हैं इन अ जनरल वे वी कैन अंडरस्टैंड देन एनी मटेरियल दैट इज अप्लाइड टू ट्रांसपायरिंग प्लांट सरफेस with the aim of reducing or inhibiting water loss from the plant surface is called the anti-transparent product or anti-transparent solution. So the anti-transparents are also known as transpiration separants, ठीक है। हम उसको ये भी कहते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन को सप्रेस करें, ठीक है। तो इस तरीके का एंटी ट्रांसपेरेंट हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो देन द इंटरमीडिएटली ड्राई स्पेल, अगर ड्राई स्पेल सूखा हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, तो इमीडिएटली आफ्टर सोइंग, अगर हम तुरंत ही सोइंग करें, उसके बाद जब ड्राई स्पेल होता है, इन सच सिचुएशन हमें गैप फिलिंग विद द सब्सिक्वेंट रेन if stand reduction is less than 20% and re-sowing if stand reduction is more than 20%. So that is a very important, okay, so always mind it. And then the mulching between crop rows, stirring soil surface to create dust mulch to reduce evaporation, ओके। सो हमें बेसिकली जैसे हम पढ़ रहे थे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन हमें कैसे करना पड़ता है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन करने के लिए अलग अलग टाइप के मल्चिंग हम यूज़ करते हैं, मल्चिंग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मल्चिंग मेथड यूज़ करते हैं। इन सच सिचुएशन इफ़ द स्टैंड रिडक्शन इज़ लेस देन 20%, रीसोइंग हम करते हैं, एंड इफ़ द स्टैंड रिडक्शन इज़ मोर देन 20%, वी शुड डू the mulching procedure or mulching purpose, okay। And the next is at vegetative phase. So mulching anti-transparent spraying potassium chloride thinning of 35 to 50% population, ठीक है। एंड देन द एट फ्लावरिंग स्टेज में हमें एंटी ट्रांसपेरेंट स्प्रे करना होता है, हार्वेस्टिंग फॉर फॉडर एंड रैटनिंग विद सब्सिक्वेंट रेन इन मिलेट्स विच इज सोरगम क्रॉप के लिए। एट द राइपनिंग स्टेज anti-transparent spray, harvesting for fodder, harvesting and physiological maturity, okay। So these are the, we can say, the criteria for contingent crop planning if the weather is abnormal, ठीक है। अगर आपका जो मौसम है या आपका जो रेनफॉल फ्रिक्वेंसी है या रेनफॉल जो प्रेसिपिटेशन होने का जो टाइम है, अगर वो एबनॉर्मल है, तो ये सारे प्रिकॉशन मेजर्स जो है एज अ कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग के दौर पे हम लेते हैं, ओके। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज़ द क्रॉप हैव टू बी सेलेक्टेड विथ सुटेबल क्रॉप ड्यूरेशन टू coincide with the length of growing season,
ठीक है, हमें ऐसे क्रॉप सेलेक्ट करना चाहिए जिसका क्रॉप ड्यूरेशन है उस प्लान के अकॉर्डिंगली सुटेबल हो, राइट। अगर अर्ली मॉनसून आ गया है तो उस प्लान के लिए सुटेबल हो, मतलब वाटर लॉगिंग कंडीशन मत हो, ऐसा सिचुएशन हमें, ऐसा वैरायटी या ऐसा क्रॉप प्लांट हमें लेना चाहिए। अगर डिलेड है तो हमें शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लेनी चाहिए, लेस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट जो वैरायटी ले रही है, जो क्रॉप लेता है, ठीक है, उस तरीके के क्रॉप प्रेफर करना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट इज जनरली short duration pulses like green gram, black gram and cowpea may suit the situation. However, if the monsoon turns to be extraordinary, good opportunity is lost if only short duration crops are sown. Farmers will economic strength and motivation for high profit with some amount of risk can go for crops of long duration. ठीक है, अगर long duration crop लेते हैं तो एक रिस्क होता है और प्रॉफिट जो होता है वो किसी भी बिजनेस में हमें रिस्क लेना होता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं इस सिचुएशन में जो फार्मर अगर इकोनॉमिकली अगर उनका स्ट्रेंथ है, अगर वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, ठीक है, फाइनेंशियली अगर वो स्ट्रांग है, तो वो हाई प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए एक ये रिस्क ले सकते हैं। क्या रिस्क ले सकते हैं? शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी नहीं लगा के लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी लगा ले जिससे उनको प्रोडक्शन अधिक मिले, राइट। देन द लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स विद फ्लेक्सिबिलिटी और elasticity is yield are more suitable. For example, pearl millet and sorghum can be ratooned if monsoon extend. ठीक है, अगर मानसून बहुत दिनों तक होता है तो हम क्रॉप की हार्वेस्टिंग करने के बाद रैटून क्रॉप भी ले सकते हैं, ठीक है। देन द sunflower can be introduced for higher profits with certain amount of risk. Crops like bajra, jowar can be grown for grain if monsoon extend and if not fodder can be obtained. ठीक है, तो ये सारा एग्जाम्पल है जो हम कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग में बेसिकली वेदर में एबनॉर्मलिटीज़ होती है तो ये सच प्लान हम जो कहते हैं वो क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग क्या होता है, एबनॉर्मलिटीज़ में हम कैसे प्रिकॉशन लेते हैं, ठीक है, ये हमने देख लिया कि अगर ऑनसेट ऑफ अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून हो या डिलेड ऑनसेट ऑफ मानसून हो या ड्राई स्पेल सिचुएशन हो तो हम किस तरीके के क्रॉप्स लेते हैं और कैसा प्लान करते हैं, कौन सी इंटरक्रॉपिंग है लेते हैं, ठीक है। सो द एग्जाम्पल्स आर ऑलवेज मस्ट फॉर आवर एग्जाम। Okay, if you add in your exam in example at most, so that you will get the very good marks. Okay, so आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। I hope you all got the sense and thank you for paying attention and listening very carefully. Thank you very much and till then be safe, take care.